Good morning. In last lecture, we studied the number of things under motivation, and one theory of motivation is completed. Today, we have the second theory of motivation, and it's X and Y theory. It is the most important theory in time of motivation, work, and also become a manager. As a manager, your work is as an X and Y theory. In short, what is X theory and what is Y theory? तो एक शॉर्टकट बात यह है कि X the symbol like cross symbol. It means didn't like or not like or deleted work. जो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है लेकिन करना पड़ता है. Like this work is X theory and just Y theory. Y theory is like V और उसके नीचे Y. अब Y में yes I am also interested in this work. Means all are accepted this work, like this one person and also this one person both are ready to work this. It is one thing. In short, in 1960 Maxwell and Galls are explaining X and Y theory. Let's start today's study of X and Y theory. Look here, मैक्स जॉर्जन थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई. कब उसने इंट्रोड्यूस किया? अभी बोला 1960. अब देखो उसने क्या बोला है. मेनी पीपल get greater satisfaction from their work, greater satisfaction their work and trade into the other may why as a burden. और बहुत लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं कि the work is burden. देखो पहले ही बोला the both are x and y. अब y यानी the person is satisfied from work and x this the person is look like burden of this work. Okay, the question is motive has been studied as management. अब दोनों को जो मोटिव देने, मोटिवेशन पावर देनी, इंप्रूव करना उनका वर्क, उनको सर्वे करना है, उनके ऊपर वर्क करवा के लेना है, ये कैसे होगा? इट इज डिपेंड ऑन द सर्वे ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द पर्सन कि वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, कितना बर्डन समझ रहा है. उस हिसाब से हम उसको समझा सकते हैं कि ये काम इस तरह से करेंगे देन बेस्ट, इस तरह से करेंगे देन इट्स नॉट बेस्ट फॉर यू. ओके, then next, the question of motivation has been studied in management theory and social psychologists of decided attempt identify the social approach of management. Social psychologist Dougal Margons explained the two concept theory of human motivation of management in 1960s, the X theory and Y theory. Margins promoted the theory Y as the basis of good management. Good management यानी जो satisfy उन लोगों के लिए जो management किया जाएगा, because the person are satisfied. अगर वो खुश है, वो तुमसे काम करना चाहता है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी जो planning रहेंगी with him रहेंगी, with her रहेगी. But if the person is not interested, your management is with him or with her रहेगा, लेकिन you are thinking that ये this time completed or not. Assumptions are there. Assume नहीं जाएगा. देखो उसने बोला है उसके इसमें. And X theory and the Y theory. The basis of good management practice promotion that the assuming work are not merely devised into the company mechanism. As theory, exterior organization seems to believe. Exterior इसके seems to believe यानी वो कितना believe करता है, वो कितना burden समझता है, वो कितना work समझता है, इसके ऊपर depend होगी. The theory look at how manager participation of how motive is her terms member affected by her behavior. It's like the X theory is affected on the behavior. The good behavior, it is Y theory, and the bad behavior is depending on X theory. In short, the theory is distributed like this. The behavior is like this. In the way of X theory, the behavior like need to be controlled. कि उस बंदे को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो खुद तो काम नहीं करेगा, दूसरों को भी काम से दूर भगाएगा. बट इन वाई थ्योरी want to be involved, वो ready रहेगा to involve with you, involve in your work, involve in your business. सेकेंड पॉइंट में देखो उसने फिर से बोला हुआ है द एक्स थ्योरी डोंट लाइक योर वर्क. वो कभी तुम्हारे काम को पसंद नहीं करेगा, वो तुम्हारे कभी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा, इज नॉट एक्सेप्टेड इन योर ऑर्डर्स एंड ऑल ऑन. एंड ऑल्सो कैन थिंक हिमसेल्फ, वो तुम में थिंक करेगा, तुम्हारे बारे में सोचेगा एंड मेक डिसीजन एंड ऑल्सो डिसीजन लेगा.
कौन से डिसीजन बनाएगा? टू वर्क विथ यू, टू इन्वॉल्व इन योर बिजनेस, टू इन्वॉल्व विथ यू, टू ग्रुप एक्टिविटी, टू योर ऑर्डर्स एंड ऑल्सो दे हैव फिर से उसने क्या बोला है? नीड टू बी पुश टू बी मोर। वो पुश करेगा टू बी मोर, और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए। क्या और ज्यादा हो जाए? नॉट वर्क, टू डिमोट योर वर्क, उसको डिमोट करेगा। तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं उनको दूर करेगा, यहाँ तक कि खुद तो भड़का हुआ रहेगा, दूसरों को भी भड़काएगा। एज कंपेयर टू शी ओन ओनरशिप ऑफ टास्क, इसकी ओनरशिप क्या रहेगी? कि उसको दिया हुआ काम। इसकी ओनरशिप क्या रहेगी? इसको मिला हुआ पोजीशन। द बोथ आर डिफरेंट। नीड टू इंसेंटिव स्कीम, वो कभी भी इंसेंटिव, ज्यादा पैसे कैसे मिल रहे हैं, ज्यादा पैसे काम करने का है, ज्यादा इन्वॉल्व क्या है एंड ऑल, इसके अंदर फंसा हुआ रहेगा। एज कंपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरी वराइटी ऑफ टास्क, ये खुद से वराइटीज बनाएगा, टास्क बनाएगा और उसके ऊपर रेम्यूनरेशन के ट्राई करेगा। बट इसका रेम्यूनरेशन रिवार्डिंग की हुई कि नंबर ऑफ टास्क आर जनरेटेड, नंबर ऑफ आइडियाज जनरेटेड, इनकम जनरेटेड, प्रॉफिट जनरेटेड, देन आल्सो रिवॉर्ड्स आर जनरेटेड। यार ये कंपनी कब सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मैं सैलरी बढ़ेगी तो ज्यादा काम करूंगा, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं ऐसे सोचते बैठेगा। हैव टू बी डायरेक्टेड टू द थिंग दैट दे डोंट एंजॉय। इसके अंदर ये ऐसे डायरेक्टेड बनाएगा, ऐसे लोग बनाएगा जो जरा भी इंजॉय करना चाहते हैं। कैन एंगेज इन सम लेवल ऑफ सेल्फ, कैन एंगेज इन सम लेवल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एज कंपेयर टू अदर मैनेजमेंट। In short, the X theory and Y theory is telling you about the thinking of your mind regarding to your getting work. The X theory is explaining to you regarding to work, like you are not interested with work, you are not engaged with work, you are not ready to work this and all. And also like these people, but for salary work there. But the salary work there and they are demotivated to other person, they are demotivated to other person. As compared to the Y theory, it is ready to involve, think yourself, think themselves, वो खुद का भी सोचेंगे, वो दूसरों का भी सोचेंगे, and also work ready for work. This person and this person both are worker in one organization, but number of way are there. X30 person are hazardous for us. They are not ready to work. तो तुम्हारे production, effect on profit, effect on your future oriented plan, and also that. And why theory person? It is involved in your business. They are affecting you and your business, also affecting profit, generator of work, and also the number of plan is there. Okay, in briefly, your Ayurveda studies in next point, your management style is strongly influenced by your belief and assumption. But what motive member are your term? क्या term है? If you believe that team members dislike work, you will tend towards unauthorized style of management. On the other hand, if you are assume that employees take pride to doing good job, you will tend adapt to more participation style. In briefly, what is theory X? The part theory X, the theory X is assumption that employee of naturally unmotivated and dislike working and encourage an authorized style of management. According to the view of management, must actively interview get that thing doing style management assumption in the workers. So क्या करते हैं? Dislike of working. अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिसलाइक ऑफ वर्किंग, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड टू बी डायरेक्टिंग, हैव टू बी कंट्रोल फोर्स एंड थ्रेटन टू बिलीव व्हाट नीड, हमें क्या जरूरत चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक पावर ऑफ जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बिकम अ मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का कोई तुम्हारे पास छोटा सा काम आ जाए, तो तुम्हारे ईगो को हर्ट होता है। अरे आई एम इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, माय वर्क इज टू हाउ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑल, एंड द एक्स डिफरेंट एक्स वाई जेड पर्सन इज सेल्स डिपार्टमेंट, आज जो एब्सेंट है तो मैं क्यों देखूं उसका काम। it is it is the conflicts is there and the production is there, but sales is not there, and the production हो सेल होगा, अगर सेल नहीं हुआ तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम्हारे वर्क की सैलरी निकलने वाली है क्या, तेरा काम होने वाला नहीं। दिस एक्स थ्योरी, ओके, नीड्स टू बी सुपरवाइज टू एवरी स्टेप, हर एक चीज को सुपरवाइज करता है, वहां पे गलतियां ढूंढते रहेगा।
with control put place, need to be enticed to proceed the result, otherwise they have to ambition increasing to X type organization, यानी X type theory organization to be top heavy, to be top heavy with मैनेजर्स हैवी विथ यानी वो कभी भी यानी गुस्सेल हो सकते हैं, वो भड़क सकते हैं, एंड सुपरवाइज रिक्वायर एट एवरी स्टेप टू कंट्रोल वर्कर्स। यहाँ पे हमें कैसा होना चाहिए मैनेजर के साथ, या मैनेजर एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजर तुम्हें सुपरवाइज करना चाहिए कि कौन किस कैसे झगड़े लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। delegation of authority but control remaining for अब कैसे merger says regarding to that X worker, X types worker are fact usually the minority, and yet in mass organizations such as large scale production involved, exterior management भी require can be unavoidable, उनको अवॉइड करना जरूरी नहीं है। उनको अवॉइड करना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? बिकॉज दे आर डीमोटिवेटेड योर वर्क्स एज कंपेयर टू द थ्योरी वाई। इसके अंदर देखो क्या बोला हुआ है, theory Y is explain the participation style of management that is decentralized. It is assuming that employees are happy to work, are self-motivated and creative and enjoy working. Great responsibilities assume that workers कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है एज अ मैनेजर वर्कर, क्योंकि अब यहाँ देखो चेंज है। पहले में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में थी? मैनेजर, बिकॉज वहाँ क्या होने वाले थे, ऐसे काम होने वाले थे जिसमें काम से दूर किया जाता है। तुम्हें वो टाइम पास कराना सिखाई गई, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड ऑल। बट एज कंपेयर टू वाई थ्योरी, वाई थ्योरी में क्या है कि वर्कर्स इज आल्सो रेडी टू वर्क। देन वहाँ पे मैनेजर की जरूरत है क्या? कि अगर लोग ही रेडी है तो मैनेजर की क्या जरूरत है? मैनेजर रहेगा लेकिन जस्ट मोरल वर्क, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर मोटिवेट टू फुलफिल द गोल दे आर गिवन। उनको दिया हुआ काम जो रहेगा वही मोटिवेट रहेगा और उसी के ऊपर वो फाइट करेगा। seek and accept responsibility need much direction, consider work as nature part of life and solve work problem as imagination. This participation management style tends to be more widely applicable. In white type, this participation management style tends to be more widely lower level and organization is involved to decision make and have more responsibility. Comparing X and Y theory, the motivation of comparison करते हैं। The theory X is assume that the people dislike work, want to be avoid and do not want to take responsibility. Theory Y assume that the people are self-motivated and thrive on responsibility. Management style is control in theory X. Organization management in authorized and centralized control is reacted। अब देखो इसमें क्या होता है, एक एक देखते हैं। मोटिवेशन में क्या रहता है, वो जरा भी लाइक नहीं करते तो उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। सेकंड में देखो क्या बोला हुआ है, मैनेजमेंट स्टाइल एंड कंट्रोल। इसमें मैनेजमेंट स्टाइल कैसा रहेगा? हायर रहेगा, वो तुम पे हर वक्त हावी रहेगा, तुम्हारी एक एक गलती में तुम्हें बुला के सुनाएगा एंड ऑल। सेंट्रलाइज रहेगा, ठीक है। द इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉय डिसीजन ऑफ मेकिंग, हर एम्प्लॉय के डिसीजन में, कोई भी पार्टी हो कुछ भी, मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व। उनको देखना होता है कहाँ जाके कैसे उनको डिसीजन बना रहे हैं, कहाँ मोटिवेट हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, हर जगह इन्वॉल्व रहेंगे। वर्क ऑर्गेनाइजेशन, काम की जगह पे थ्री एक्स एम्प्लॉयज स्टैंडिंग द स्पेशलाइजेशन आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। इन थ्योरी वाई द वर्कर टेंड टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड वाइडर एरिस, वो उसकी जगह क्या करेगा? वाइडर एरिस करेगा। skill of knowledge, employees are also encouraged to develop expenses and suggestion to improvement। स्किल और नॉलेज को देखते जाएगा, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बोलेगा, यानी गलतियां निकाली जाएंगी और उसको सुधारने के लिए बोलेगा। देन रिवॉर्ड्स एंड appreciation, theory X organized work can be carrot and stick, basic and perform applicable is to part of the overall mechanism in control to a remuneration in theory Y organization, also the regular importance, but is usually to separate mechanism from organization control। Then application देखो क्या यूज है। Although the theory X management style is widely accepted and inferior to the other,
It has placed a larger scale of production, operation, and unskilled production line work. Many of the principle of theory Y is widely adopted by types of organization, the value and encouragement participation. Okay, here the application is done. He let's we started the next and last module and last concept, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अभी जो हमने देखा लास्ट थर्ड मॉड्यूल में, ऑर्गेनाइजेशन मोटिव पावर्स, देन मोटिव कैसे किया जाता है, उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, देन एक्स थ्योरी, देन वाई थ्योरी, एंड आल्सो सम मोटिवेशन प्लान्स which is necessary time of as a manager. Okay, तुम देखो एक बात बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि तुम अंडर एफएचएस जो फाउंडेशन तुम्हारा जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे, लेट्स ट्राई बाय मी, तो हम कभी भी ये सोचेंगे कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रहेंगे, तो ऑन दिस प्रोसेस जस्ट हम उस पोजीशन पे नहीं है. तो देखो हेनरी फेयर ने तुम्हें एक बात सिखाया, अथॉरिटी गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस अथॉरिटी के साथ सम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे अंडर बहुत से लोग रहेंगे. तो जब भी तुम जजमेंटल कोई आंसर लोगे तो उन लोगों को सोच के लेना होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, तो जब मैं डिसीजन लूंगा रिगार्डिंग टू एफ वाई, तो एफ वाई के लिए डिसीजन लेते वक्त मुझे ये सोचना होता है कि मैं भी वहाँ उस क्लास में जाता हूँ फॉर एफ एच एस सिखाने के लिए. अगर मेरा डिसीजन रॉन्ग रहा या डिसलाइक टू स्टूडेंट रहा, तो आई नो कि स्टूडेंट्स नॉट रेडी टू स्टडी विथ मी. वो मेरी स्टडी को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे, वो कभी भी मुझे क्लास में मोटिवेट नहीं करेंगे या सीरियसली लेंगे नहीं. यानी मेरा डिसीजन रॉन्ग है एज कंपेयर टू द अदर फैकल्टी. कभी भी सोचो तुम एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और तुमने कितना इंग्रेडिएंट कितना लेना है उस पर कभी व्यू ही नहीं लिया और वर्कर को बोला जो डालना है वो डाल दे, एंड वर्कर इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ शुगर्स, बहुत मीठा हो गया, लेस शुगर लेस मीठा हो गया, द प्रोडक्शन इज नॉट गुड एंड इफेक्टेड ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए उसने पहले मोटिवेट करना है, उसके बाद अभी डेवलपमेंट की बात करना. क्यों? क्योंकि जो मेन पहली बातें थी, जैसे पहले इंडिविजुअल को बदला, फिर ग्रुप को बदला. फर्स्ट मॉड्यूल इंडिविजुअल स्टडी थी, सेकंड ग्रुप स्टडी, देन मोटिवेट किया. इंडिविजुअल को भी मोटिवेट किया जा सकता है, ग्रुप को भी मोटिवेट किया जा सकता है, एंड द लास्ट मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अब इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट कर सकता है, ग्रुप भी डेवलप हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट देखो उसने बोला हुआ है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट विद थिंकिंग अबाउट स्ट्रेस. क्या होता है स्ट्रेस और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है बाय पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल. देखो खुश रहना ही सबसे बड़ी बात होती है. लेट्स स्टार्ट. तो इन दिस स्टडी वी आर द फर्स्ट पॉइंट, द इंट्रोडक्शन, organizational development. The word OD, the number of times the OD are generated here, it is the stand for organizational development. उसको समझ के, यानी कहीं पे भी मैंने OD रीड किया तो इज नॉट OD, इट्स organizational development. I need to try to speak organizational development. Okay, let's start. Organizational development has been the widely used and recent year in approach to the introduce plan change in organizational system. Survival responsibility have different organizational development in different way. देखो उसने पहले ही बोला हुआ है कि हर जगह डिफरेंट वे है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के जो सर्वाइव किए जा रहे हैं. Definition of OD या organization development. He stand like organization development it's effort plan, क्या एक planning है, wide and management for the top increasing organization system. अब इसी organization development process, yeah, let's start. Plan process to develop the organization to be more effective in acquisition of decision goal. अभी जो डिसीजन या गोल इन फ्यूचर गोल है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज कंपल्सरी. अब डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इट इज स्टडी ब्रीफली इन दिस मॉडल. ओके, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव होंगे?
तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर. अब ऑर्गेनाइजेशन मेंबर क्यों बोला हुआ इसने? व्हाई यूज द मेंबर वर्ड? बिकॉज जब वर्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है तो नॉट ओनली वर्कर, नॉट ओनली मैनेजर, also established person, एंटरप्रेनर सबके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि सब लोगों का सबका वन मोटिव होना चाहिए, द वन ऑर्गेनाइजेशन वन मोटिव, और उस मोटिव के ऊपर वो लोग चलना चाहिए. One person can change the planning or change, and as per this planning the two way are generated and two different way are affected on your organization. The increase the insight confrontation of organization problem both within groups and among group in contract to swiping प्रॉब्लम अंडर. अभी बोला कि अगर दो डिफरेंट हुए तो स्वाइप होगा, दो डिफरेंट आइडिया होंगी, दो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, दो डिफरेंट, you know, to create the environment in which authority is assigned role to accumulate the authority based knowledge and skill. हमें कैसे क्रिएट करना है, असाइन करना है खुद को या ऑल एम्प्लॉय को? नॉलेज बेस एंड स्किल बेस, ये दो चाहिए. जस्ट थेरोटिकल पर्सन नहीं चाहिए जो रट्टा मार के पास हो रहे हैं अभी तक. उनके लिए ये सेंटेंस वर्स है. ऑर्गेनाइजेशन कभी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कितना ही टॉप लेवल पे जाओ, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और एक्सेप्ट करने के बाद उनको कभी तुमसे बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें यू नो आइडिया, यू नेवर द आइडिया टू डन द वर्क, बिकॉज तुमने प्रैक्टिकली कभी किसी चीज को छुआ नहीं हो. लेट्स अ सिंपल एग्जांपल. अगर मैं किसी को ऐसे डायरेक्टली वर्क दे दूं कि टुमारो यही लेक्चर तुम में से कोई एक सिखाना पसंद करेगा क्या, ये पीडीएफ मैं उसे फॉरवर्ड करूंगा, देन यू रेडी टू एक्सप्लेन. जूम पे सिखाना है लाइव, टाइमिंग शुरू होगी, सिखा देना. कितने स्टूडेंट सुन रहे हैं उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं, इन्वॉल्व कोई नहीं होगा. तो नो वन कैन इंटरेस्टेड, आई नो दैट नो वन कैन इंटरेस्टेड. एक दो कोई इंटरेस्ट रहेगा जो घर में क्लास वगैरह लेते होंगे, तो उनको पता है हाउ टू टीच दैम, वो रेडी होंगे. बिकॉज कि जो स्किल ऑफ टीचिंग या स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन या स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये जो है वो तुमने सिर्फ थेरोटिकल सुने. प्रेजेंटेशन ये वर्ड थ्योरी में कहीं तो ग्रुप में कहीं ग्राफ में आ गया, वहाँ स्टडी से किया हो गया. देन नॉलेज ये सिर्फ सुना है, होता क्या है हमने देखा नहीं, ट्राई नहीं किया खुद पे, है ना. तो ये तुम्हें ट्राई करना है, खुद को जज करना. इट्स द मेन थिंग टू इंक्रीज द ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन laterally, vertical and diagonal, to increase the level of personal attention and satisfaction in the organization, to find singering solution of problem. 2 plus 2 equal more than 4. ऐसे प्रॉब्लम बनाने कि दो और दो चार नहीं होने चाहिए, या दो और दो मिलके पांच होने चाहिए. इट मीन्स कि मैथमेटिकल सीन नहीं है. इट मीन्स दो मिलके अगर एक दिन में प्रोडक्शन लेवल 5 यूनिट किया और दो उसमें लाते हैं तो चार हो गए, तो उनसे प्रोडक्शन की यूनिट चार, दो से पाँच तो 10 नहीं, कम से कम 12 तो भी होनी चाहिए. बिकॉज वो एक दूसरे को मोटिव कर रहे हैं, टाइम स्प्रिट ज़्यादा हो रहा है, वर्कर ज़्यादा है, तो जो मेन वर्क है वो मैक्सिमाइज हुआ रहेगा, प्रोडक्शन हाई हो सकता है. बट रिवर्स वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में. जब एक रहता है तो ज़्यादा काम करता है, एक से ज़्यादा हो गए तो दोनों बातें करने में टाइम वेस्ट करते हैं और काम कम होता है. इसीलिए उसने बोला टू फाइंड सर्जनिस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढो जो 2 और 2 4 और मोर करें. क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन अभी तक मिलना बाकी है. ओके, देन ऑन इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंटर विजन. अब देखो क्या विजन होते हैं. विजन है द मेन मोटिव ऑफ योर वर्क. द इंटरविजन इज द procedure to organization development cluster consult use after diagnosing an organization situation and providing the feedback to management to address the organization problem or positive future. Such as such interviews may be in the format of special structure, changes, working of conflicts, team building, in the participation, department, work to depth, etc. Each interview required to detail plan. Following are the organization development intervention techniques. अब देखो क्या होता है. Elimination of hierarchical decision making. जो decision making हुई उसमें elimination. When the create the development changing in organization, the responsibility of
decision making should shift from being to the task decision to manager to one that all the employees share in healthy organization. Manager understand that decision making should occurs when, अब इसके लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 12th में तुम्हें हुआ होना तो चाहिए, सिखाया कि नहीं पता नहीं मुझे। तुमने शेयर के टाइप्स में एक बात सुनी होगी, and this type is shares to worker, या वो टाइप ये भी हो सकती है। एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। अब ये कंसेप्ट क्या है? इन दिस कंसेप्ट द नंबर ऑफ employee also your organization shareholder। अब इस कंसेप्ट को डीपली स्टडी करेंगे तो तुम्हें ये बात पता चलेंगी। एक शेयर होल्डर के बारे में सोचो, एम्प्लॉय के बारे में, तो वो क्या चाहता है? he or she want dividend, ओके। देन सेकेंड वो क्या चाहता है? मैक्सिमम रेट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जितनी होगी उतना मेरा बेनिफिट होगा। अब ये चीज उसके बाद और क्या चाहता है वो? हाई रेट ऑफ सेल, सेल ऑफ दिस शेयर बिकॉज द मैक्सिमम प्रॉफिट इन फ्यूचर। और देखो क्या चाहते हैं शेयर मार्केट में, तुम क्या जानते हो? याद आ रहा है? फेस वैल्यू, और देखो क्या चाहता है वो? ऐसे नंबर ऑफ ये चीजें। अगर आउट ऑफ द बिजनेस पर्सन जो तुम्हारा शेयर होल्डर है वो इतनी चीजें तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन मुझे बताओ ये चीजें कब कंप्लीट होने वाली है? इट इज हर्षद मेहता की स्कीम देखे होंगे तो उसके अंदर बताया होगा कि वो स्ट्राइक के बारे में बताया, एम्प्लॉय स्ट्राइक के बारे में। इट मीन्स द नंबर ऑफ, देखो अब मैं इस पे फिर से डिस्कस करता हूँ। तो वन से कंसेप्ट ऊपर की चार बातें कब कंप्लीट होने वाले? फर्स्ट, इफ प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस गुड्स, प्रोडक्शन होने के बाद सेकेंड सेल्स होगा, थर्ड प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? एम्प्लॉय का वर्क चाहिए, एम्प्लॉय काम करेंगे। फोर्थ वन, एम्प्लॉय काम करने के बाद हमारा मार्केट कैप्चर या एडवर्टाइजमेंट सिस्टम या प्रेजेंटेशन सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए कि लोग इंटरेस्टेड टू बाय योर गुड। फिफ्थ वन, यानी इन शॉर्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऐसा होना चाहिए जिससे लोग कहे दिस कंपनी इज बेस्ट। अब इफ द आंसर इज देयर कि ये चीजें जो है वो करने वाला कौन है? दिस वन पर्सन, एम्प्लॉय। ये चीजें करने वाला है कौन? तो एम्प्लॉय। अगर ये चीजें एम्प्लॉय करने से एक आउटसाइडर को बेनिफिट होता है बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, वही बेनिफिट अगर मैं इसी एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर बेच के दिया तो जो मैं 100 रुपीज का शेयर बेचने वाला था, आउटसाइड
if the share is rate of 100 rupees at market value, if I sell inside inside at rupees 75 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज है मुझे पता नहीं, तो वो जो 25 रुपीज का उस वक्त मैं लॉस एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दिस लॉस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। कैन आई एक्सप्लेन यू कैसे हो, बताता हूँ। अगर ये 75 रुपए में किसी एम्प्लॉय ने मुझसे शेयर खरीदा, तो उसके टू माइंड बनेंगे, उसके दिमाग में दो बातें रहेगी। कौन कौन सी बताता हूँ। द फर्स्ट, उसके बाद दो बातें रहेंगी कि फर्स्ट, प्रोडक्शन इज मस्ट, ओके, एंड सेकेंड, प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन, माय शेयर कैपिटल, मेरा शेयर है। अब अगर मेरे शेयर है, प्रॉफिट किसका है, मेरा है। अब मेरा प्रॉफिट है तो वर्क मुझे किसे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। इन मीन्स ट्वाइस वर्क आर देयर। एज ए एम्प्लॉय वो तुमसे प्रोडक्शन करेगा, एज अ शेयर होल्डर वो तुमसे उसकी डिटेल भी लेगा, और ये डिटेल उसको बेनिफिट देती है। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम भी बोल सकते हैं इसे हम लोग, ओके। वही बात उसने या एक्सप्लेन करने की कोशिश है। देखो क्या बोला है, तो क्या बोला है उसने, इन हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मेकिंग should occurs within the source of information which is not always toward to talk to the chain command। अब इसके ऊपर क्या बोला है उसने, टास्क डिसीजन मैनेजर वन टू दैट ऑल द एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर यानी ऐसा बना जिससे ऑल एम्प्लॉय शेयर का बेनिफिट है। Because a team making organization, not just individual change, must primarily focus on group, focusing on group। अब ग्रुप के ऊपर फोकस करना है हमें, कौन से ग्रुप, वर्किंग या वर्किंग ग्रुप। तो because of team makes up the organization, not just individual change must primarily occur in group in order to make the difference in culture group within the organization must have clear understanding about the purpose, mission and goal as well as purpose of organization of company। इसके अंदर हमें डिस्कस करना है, ओके। देन बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, हमें किसकी, ट्रस्ट की, दूसरों के ऊपर भरोसे की बिल्ड करना है। एक ऐसा एक दीवार खड़ी करनी है जिसको कोई तोड़ ना सके। अब कौन सी दीवार, तो ट्रस्ट की, हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। कानाफूसी नहीं करनी है कि ये ऐसा बोल रहा था वैसा, जो उसने बोला है ना, मे भी हो सकता है, ओके, यू आर राइट, यू आर राइट। देन रिड्यूसिंग ऑफ अननेसेसरी कॉम्पेंसेशन, अननेसेसरी कॉम्पेंसेशन यानी झगड़े, या इन शॉर्ट नाश्ते के लिए जाना, उधर ही बैठे रहना, छोड़ बाद में करेंगे, ये थिंकिंग है ना, दैट रिड्यूस दैट। अब कैसे रिड्यूस होंगे, अगर एम्प्लॉय शेयर इज दैट, एम्प्लॉय खुद को समझते हैं कि मैं हिस्सा उस कंपनी का, तो वो खुद को रिड्यूस करने लगेंगे। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉयज, देखो अभी ये बात फिर से आई, ओके, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मोटिवेशन गोल रहेगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक देना, देन उसकी एक्टिविटी में लेना, उसको बताना कि तू ही रियली ओनर तू है, कि तू काम कर रहा है तो सबका पेट भर रहा है, तो यू आर द मेन पर्सन एंड ऑल। द इंटरिम मेजरिंग ऑफ कंट्रोल, द एक्शन ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हर जगह पे उसको एक्टिव। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा, जब वो फील करेगा कि वो चीज़ उसकी। और फील कैसे करेगा, इफ शेयर उसके नाम पे थोड़ी सी लिख दो, जो मार्केट में बेचने वाले उसको ही बेच दो। द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ओके। Then the next point, stress, is started from the next lecture, stress and stress management. Okay, all of you. Thank you. Good morning. Um, in last lecture, we have studied the last module, some concept, organizational development. But in time of organizational development, some work is there, and this work is heavy to us, tough to us, and this toughness is known as, this toughness is known as your work, and this work is stress. Okay, then let's study of the stress management. What is stress?
and stress management. Stress is a gap up, the gap up work which is not done perfectly is known as gap. असं काम, असं गॅप तुमच्या कामामध्ये पडलेलं जो तुमच्याने प्रॉपरली डन होण्याची शक्यता कमी असतं त्याला आपण स्ट्रेस म्हणतो, त्याला टेन्स म्हणतो, आणि त्याने घेतलेला जो प्रेशर ऑफ युअर माइंड इज स्ट्रेस. Stress are the two types, is the positive stress and negative stress. Positive stress is the challenges you accepted by you, and negative stress it is burden accepted by your mind. Are you getting my point? बघा दोन मध्ये काही डिफरेंस है. पहला है कि पॉजिटिव स्ट्रेस. फर्स्ट इज पॉजिटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि हमें एक चैलेंज दिया जाता है या हमें प्रूव किया जाता है कि यू कान डू इट, और हम वो चैलेंज देते हैं कि आई एम डू इट. अब इसमें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जो अजम्पशन है, इस अजम्पशन को स्ट्रेस बोला है उसने. एज कम्पेयर टू नेगेटिव स्ट्रेस में यू कैन डू इट बट यू नेवर वांट टू डू इट. हम करना ही नहीं चाहते इसलिए हम बहाने बनाते, दूर भागते, इसे भी इसमें स्ट्रेस बोला हुआ. ओके, लेट द स्टडी ब्रीफली व्हाट इज स्ट्रेस. ओके, near 1000 Japanese die each year from Koroshi heart attack. Koroshi, Japanese word, it means heart attack. Our story triggered by overwork. किससे? Overwork. It is stress. Overwork यानी क्या है? Stress है. Stress is individual responsibility to such as environment, condition or stimulation. Stress is body method of restriction challenge according to the stress event, and the body weight responsible to stress is traffic's nervous system activity which result in fight or fight response. क्या बोला हुआ स्ट्रेस के बारे में? एक रिजल्ट है फाइट रिस्पॉन्स के बारे में. इन ह्यूमन कैसा होता है? इट इज टिपिकली टू डिस्क्राइब, उसको हम इजीली नहीं बता सकते कि एक्चुअल स्ट्रेस होता क्या है. Negative conditions, maybe they are the negative conditions or the positive condition that can be the impact on person's mental and physical wellness. मैंने अभी बोला अगर वो पॉजिटिव रहेगा, चैलेंज रहेगा, then it's improve you, and the negative रहा then it's decline you. Okay, stress is defined as an adapting response is external situation that result physical, psychological, and behavior detail the organization practice participant. स्ट्रेस को उसने कैसे बोला, कैसे डिफाइन करेंगे? एक अडॉप्टिंग रिस्पॉन्स होता है जो एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से होता है, जो तुम्हारे सामने हो रही उस सिचुएशन की वजह से होने वाला है, और उस सिचुएशन को हम वी आर देन पार्टिसिपेट एंड द फिजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियर. If the positive stress is there, this is expensive when the stress leads to the improvement overall your perform and productivity. It means shortly challenges. Positive stress is usually outcome the positive attitude toward the stressor. यानी जो तुम्हें चैलेंज देता है, यानी जो तुम्हें यानी एक बिहेवियर होता है, ग्रुप बिहेवियर. हम किसी को इतना चने के झाड़ पे चढ़ाते कि वो कर दे, वो काम कर देता है, कभी कभी वो कर नहीं देता है, लेकिन अगर वो कर देगा इट इज उसको हम जो स्ट्रेस दे रहे वो पॉजिटिव स्ट्रेस. तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, देन वो बोलेगा मैं करके ही दिखाऊंगा, एंड वो करके दिखाता है. अब वो पहले कैपेबल नहीं था, लेकिन तुम्हारे जो अपग्रेड करने की वजह से या तुम्हें पुल अप करने की वजह से या तुम उसको जो सता रहे थे उसकी वजह से उसके अंदर जो चेंज आया इट इज पॉजिटिव स्ट्रेस. अब इसके अंदर क्या क्या आया देखो पॉइंट. Inclusive creative. Not only you are able to make develop thing, you are also able to think of new more effective method. जब स्ट्रेस लेते हो, माइंड पर प्रेशर लेते हो, तो इससे क्या होने वाला? इंक्रीज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है. कैसे होती है? इट इज एबल टू डेवलप थिंक, यू आर ऑल्सो एबल टू थिंक अ न्यू एंड मोर इफेक्टिव मेथड. देन हाई प्रोडक्टिविटी होती है. पॉजिटिव स्ट्रेस के फीचर्स है. यू आर एबल टू कंप्लीट द मोर टास्क टू मेक work and participation in more activity in your personal life. Okay, then improve self-esteem. You generally feel good about yourself, happy with the life that are leading, Then better health. Better health कैसे होता है देखो पॉजिटिव में. पॉजिटिव स्ट्रेस, positive stress, your immune system, operation, operating system, stression system, your thinking system, all things meaning that you are less likely to be
इलनेस। तुम क्या करते हो, इलनेस नहीं रखते हो, कंठाला नहीं करते हो, इसकी वजह से जो तुम्हारी पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, दे आर द एक्टिव हाईली एट दिस स्ट्रेस आर इम्प्रूव योर सेल्फ एज कंपेयर टू द स्टडी ऑफ negative stress. In this negative stress, normally the stress causes that best perform out of the person. अच्छा परफॉर्म करने वाला है, however when the person limited exceed, बट उसको जो सोर्स मिलनी चाहिए उसका लिमिट ही नहीं है या कम लिमिट है, तो जो होने वाला है then he she overstrate and outcome that the overall perform in productivity become impaired or completely out action. जो चाहता है वैसा होता नहीं है, उससे जो उसके माइंड में होने वाला स्ट्रेस टेंस है इज नोन एज नेगेटिव स्ट्रेस. You know, as negative stress is usually that outcome of poor attitude towards your stressor. ये किसकी वजह से होता है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है, पुअर है, या तुम्हारा बिहेवियर है वो पुअर है, थिंकिंग बिहेवियर एंड ऑल, एंड देन द पुअर थिंग इज पुअर टाइम मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन, फैसिलिटी एंड ऑल थिंग द समथिंग दैट तुम लो क्वालिटी में कर रहे हो, इस लो क्वालिटी के ऊपर डिस्कस करें. ओके, the because of your stress, your body ability and cope with stress become are able to successful. अब sources देखो क्या है, the three types of sources है, the sources and causes of stress. यानी the study of briefly stress, the organization sources. अब organization में क्या होता है, task demand, बॉस का डिमांड है कि हमें यही और इतना ही चाहिए, this is the pressure. Okay, factor related to the task demand, the factor related to person's job profile, work condition and physical layout of the work. If two more people depend on each other complete task, there are more changes to stress between among them, even in physical layout, production unit, where the temperature, noise and other working conditions. As need higher reach, Maslow suggests that every employee needs security at workplace, job security and all. अब ये जो जॉब सिक्योरिटी या वर्क प्लेस पे मिलने वाला स्ट्रेस है, ये किससे होने वाला है कि मेरे काम आगे रहेगा कि नहीं, मेरा काम अच्छा है कि नहीं, मेरा काम सबको पसंद आता है कि नहीं, ये जो थिंक है तुम्हारे इसमें, द थिंकिंग आर द चेंज एंड दिस चेंज आर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस का पहला है टास्क डिमांड. Then a role demand, your work, including role ability, the role ensure the role overlay and role ambition occurs when an individual receive unclear job profile. Role ensures arise when the function of one employee performed by someone else in organization. Role overcome occurs when there are too many expectations. Okay, it means uh, interpersonal demand, then interpersonal demand. Conflict, the personality and behavior may causes the stress conflict can occurs when two or more people must work together even through their personality, attitude and behavior. For example, smoker and non-smoker who are assigned some work together at some workplace obviously experience our stress. Organized structure, देखो उसके बाद में क्या बोला हुआ, which is difficult level is the different definition, that degree of rule and regulation whenever the decision are made. Expensive rule and lack of participation is decision effective employee and example structure behavior. Okay, then last point is organization leadership. Represented the management style of organization, senior executives, some chief executive offer. In short, देखो इतने पॉइंट में क्या बोला हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस है ये किस वजह से आता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस आता है, ये स्ट्रेस आता है वे ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से. अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम इन डाउन टू अप देखेंगे हम, इससे हमें इजी समझेगा. फर्स्ट रहती है ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, किसके पास होती है, इज अ ओनर ऑफ कंपनीज, देन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, देन मैनेजर्स, देन फोरमैन, देन वर्कर. कितने वे हैं, इसी वे को वो लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर में जो लोअर है
उनको अपर से बात करनी है, नहीं क्या कहते हैं, डाउन लेवल से टॉप लेवल में बात करनी है। तो उनको कितने लोगों के पास बात करनी होती है, डाउन लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल। हर एक के पास वो बात स्प्लिट होते हुए जाती है, और वो स्प्लिट होती है तो अलग अलग वे में होती है। देन इंटरपर्सनल डिमांड, अब खुद की जो कुछ डिमांड रहती है, हमें वो ब्लॉक करनी पड़ती है। इट मीन्स तुम्हारा कहीं घूमने का प्लान है और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हो गया, तो तुम्हें वो प्लान छोड़ के उस वर्क को जाना होता है, बिकॉज यू वांट इम्प्रूवमेंट एंड यू आल्सो वांट योर जॉब। देन योर रोल तुम्हें बेस्ट प्रेजेंट करना है, और उस रोल को बेस्ट करने के लिए तुम्हें जो दिया जाता है, वो टास्क देता है, जो डिमांड रहती है उसको कंप्लीट होना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें ऑलवेज तुम्हारे पर्सनल व्यू एंड पर्सनल लाइफ से दूर करता है, एंड दिस पर्सनल लाइफ को दूर करना ही स्ट्रेस है। इन शॉर्ट इतने पॉइंट में सिर्फ इतना ही बोलना था, जो उसने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। देन उसने नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, ग्रुप सोर्सेस। Let's come to the group sources point. लैक ऑफ ग्रुप चूजनेस। सबसे पहले तो हमारे इसमें जो पावर रहते हैं कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करे, कौन से फ्रेंड सेलेक्ट करे, उसी के ऊपर उसमें बोला है ग्रुप चूजनेस और ग्रुप यूनिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज मेनली टू लोअर लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो फिर से उसने वही बोला, लोअर लेवल एंड लेबर लेवल, वहाँ बहुत लोग होते हैं तो बहुत सारे बड़े ग्रुप होते हैं। इज एन एम्प्लॉय deprived to choosing the task design, this can be very stress of production. Then social loafing. Social loafing is a result to group size in a society. It is the tendency for person to exert the less effort collectivity that working individually. Thus few people, thus few people working together will not be few times more than productive than single individual working alone. कुछ लोग एक साथ काम करना या अकेले काम करना, कभी कभी अकेले काम करना अच्छा होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो चार लोग चार अलग तरीके से डाइवर्ट करते हैं, और वो डाइवर्जन हमें ग्रुप इफेक्ट करता है और स्ट्रेस जनरेट करता है। देन इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में तो आपने एफसी में पढ़ा भी होगा। द सिचुएशन ऑफ इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट यानी जात वगैरह के ऊपर, ये हमारे कास्ट का नहीं है, ये नहीं है, जिससे जो हमारा अलग इंटरनली ग्रुप जनरेट होता है, और उसमें जो गॉसिप्स होते हैं, उस गॉसिप से भी जो हमारे वर्क पे स्ट्रेस जनरेट होता है। देन इंडिविजुअल सोर्सेस, अलग अलग सबके सोर्सेस होते हैं, वो सोर्सेस में कान भरे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स हैविंग द डिफरेंट टाइप्स, टाइप ए always move, walk and easily rapidly, feel impotence, does survival, ये टाइप्स है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, स्ट्रेस के, इसके ऊपर तुम्हें रीड करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट एंड द टाइप्स बी, the next point is negative symptoms of consciousness, unmanaged and stress। क्या है देखो, तो उसने डायरेक्टली स्ट्रेस को तीन हिस्सों में एक्सप्लेन किया है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। तो पहला इज अनक्लियर, देखो हम फिजियोलॉजिकल केस में क्या बोला हुआ है, अनक्लियर डिजेक्टिव प्रॉब्लम, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप, ये इफेक्ट होंगे स्ट्रेस के। साइकोलॉजिकल देखेंगे तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग, न्यूरोस्ट्रेन्स। देखो इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की जगह इन शॉर्ट कवर अप करता हूँ। देखो कैसा, जब हमें स्ट्रेस होता है तो तीन जगह पे हम मैक्सिमम इफेक्टेड होते हैं। फर्स्ट इन योर फैमिली एंड योर बिहेवियर, सेकेंड इन योर सोसाइटी। तो जो फिजिकल या तुम्हारे पर्सनालिटी पे जो इफेक्ट होता है, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इससे तुम्हें क्या होगा, हर बात तुम्हारे दिल में दबी रखेंगे, दिमाग में दबी रखेंगे, प्रेशराइज रहेंगे, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये जो नॉनसेंस बीमारी है जिसे हम आजकल के पावर ऑफ लाइफ कहते हैं, नॉन पावर ऑफ लाइफ कहते हैं, ये फुकट में मिलते हैं। किससे मिलते हैं, बिकॉज ऑफ योर फिजियोलॉजिकल बेस। देन साइकोलॉजिकल, सोसाइटी इफेक्ट होता है। अब इसमें देखो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, हम अपने सोसाइटी से इमोशनली टच रहते हैं, अगर उधर ही कोई हमें स्ट्रेस में डाल दे तो उधर जाना पसंद नहीं जाना पसंद है, तो हम घर में बैठे रहते हैं। देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, न्यूरोजेस एंड टेंशन आते हैं,
कि मैंने गलत कर दिया, अब मुझे सब हंसेंगे, आई एम डूइंग नॉट वेल, सब मेरी मजाक उड़ाएंगे। ये जो होता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एब्सेंसेंस, एग्जीक्यूटिव स्मोकिंग। देखो इससे क्या होता है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कम करना है तो अल्कोहल, स्मोकिंग, देन अदर जो ऐसे है जो तुम्हें उस वक्त रिलैक्स फील कराते, पावर अप करते हैं, तो वैसे हम जो नॉनसेंस चीजें वो एक्सेप्ट करते हैं और उससे वर्क करते हैं। ओके, देन कॉपिंग विथ स्ट्रेस। अब जब कॉपिंग विथ स्ट्रेस की बात बोलेंगे तो तुम्हें बचना कैसा ऐसा है, तो पर्सनल उसने बोला है अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी ऐसी बातों से तुम दूर रहो जो तुम्हें लो कॉल स्ट्रेस लाएगा। इट मीन्स छोटी छोटी बातें, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्यों मेरे पीछे बात करते हो, ऐसे नॉनसेंस चीजों में इंटरफेयर करने वाला बंदा ऑलवेज स्ट्रेस में रहता है। उसको हर बार इस बात का डर रहता है कि मैं अगर इस जगह से 2 मिनट चला जाऊं तो मेरे पीछे मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। इस थिंग से दूर रहने का, और तुम्हारे पीठ पीछे जो बातें चल रही चलने देने की, यू हैव टू पावर टू आंसर इट द क्वेश्चन। तुम्हारे पास वो पावर रहती है, अगर तुम रॉन्ग नहीं है तो तुम उसका आंसर दे सकते हो और मुंह पे जवाब दे देने का। ओके, देन अब उसके लिए देखो, लर्न हाउ टू से नो। ना बोलने का तरीका सीखो। इट मीन्स कहाँ ना बोलना है, जो वर्क यू नो वन लाइक, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए वहां। सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, विच इज मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू डू, वेदर इन पर्सनल और प्रोफेशनल। taking on taking on more that you can handle is sufficient receipts for stress. Then avoid people who stress you out. ऐसे लोग जो तुम्हें हर वक्त टेंस में डाल रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बंदे से मुझे खतरा है, ये बंदा मेरे पीठ पीछे कुछ करता है, इस ऐसे लोगों को अवॉइड करो, उसको उनका काम करने दो। योर बिहेवियर, योर वर्क इस उसको उनका मुंह बंद कर देना। If someone consistently causes to stress in your life and you can't turn the relationship around, limit around the time you spend with him. Then take control of your environment. Hmm? अब इसमें देखो उसने क्या बोला, इफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट नेवर मेक यू एनेक्शन। अब अगर तुम्हारा जो एनवायरमेंट है वो तुम्हें नहीं चेंज है तो चेंज योर एनवायरमेंट, तुम चेंज कर लो। ट्रैफिक गॉट यू टेंस, जैसे गाड़ी गाड़ी चला रहे या टीवी टेलीविजन चालू है, इससे भी ट्रेंड्स आता है, तो जो फॉर्म में है उस फॉर्म को चेंज करो, उस सिचुएशन को चेंज करो। कि बहुत से लोगों को हिल स्टेशन पसंद है तो हिल स्टेशन पे विजिट किया करो एज कम्पेयर टू द सी लैंड। हम्म? ये क्यों बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं चेंज योर प्लेस, बिकॉज यू आर हैविंग स्ट्रेस, तुम स्ट्रेस में रहते हो, प्लेस चेंज होगा तो वो जो योर मोमेंटम या माइंड वेव जो होते हैं वो चेंज होते हैं, वो स्ट्रेस कन्वर्ट होता है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेटली सिचुएशन। अब अल्टरनेट में क्या है देखो, एक्सप्रेस योर फीलिंग इंस्टेंट टू बॉटल दैम। तुम्हें फीलिंग को एक्सप्रेस करने आना चाहिए, तुम दूसरे के सामने प्रेजेंट करो, वो देखो तुम्हारा क्या फीलिंग्स के बारे में क्या बोलता है, किसके पास शेयर करना चाहिए वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। इफ यू डोंट वॉइस फॉर फीलिंग, तुम तुम्हारी फीलिंग नहीं बाहर निकालेंगे तो उसका भी एक असर होगा। ओके, बिलीव इन कॉम्पेंसेशन व्हेन यू आर आस्क समवन टू चेंज देयर बिहेवियर, बी मोर असर्टिव टू असिस्टेंट। इन शॉर्ट, तुम्हें स्ट्रेस से कैसे बचना है इसकी छोटी छोटी बातें यहाँ बताएंगे। जब गुस्सा होंगे, मैनेज योर टाइम बेटर, और तुम वक्त, द मेन पॉइंट, मैनेज योर टाइम बेटर, अपनी टाइमिंग का वेल बेटर करोगे तो स्ट्रेस मैनेज होता है। बिकॉज अगर कहीं किसी भी मोमेंट पे ऑन टाइम तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे पीछे होने वाली गॉसिप्स एंड ऑल सब कुछ दूर रहेगी एंड यू आर अवेयर। अडॉप्ट टू स्ट्रेसर, स्ट्रेसर को अडॉप्ट करो जो तुम्हें रिफॉर्म ऑफ प्रॉब्लम लेगा, लक ऑफ बिगिंस एंड ऑल। ओके, एडजस्ट योर एटीट्यूड, एटीट्यूड को योर एडजस्ट करो एज पर योर थिंक, एक्सेप्ट द थिंक यू कांट चेंज। तुम बदल नहीं सकते उसे, एक्सेप्ट करो कि ये मैं बदल नहीं सकता, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। देन मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्शन। ओके, हेल्दी वे टू रिलैक्स एंड रिचार्ज क्या है देखो, ये जो ब्रीफली उनको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हियर योर मॉड्यूल 4 आर कंप्लीटेड।